Assalamu alaikum students. Welcome to the next lecture of network security. In previous session, we have done different modes of operation, and these operations were electronic codebook, cipher blockchaining, output feedback mode, cipher feedback mode, and control mode. We have seen what are the best features, advantages, disadvantages, and the block diagram of all these operations. And we have seen that how these operations can ease us in the block cryptography by using the symmetric key encryption. In today's lecture, our main focus will be discussing that how we can provide the TCP/IP security and what kind of features we can add to the TCP/IP protocol suite to ensure the security of different levels. So let's start with the very simplest example of one intranet, where we can have wireless and wired network. We can see that there could be some devices that are wireless personal computers or wired computers. They can have different DSL cable routers, or can have different switches and hubs. Moreover, for connecting the wireless, we need different Wi-Fi switches, Bluetooth, infrared, and different kind of technologies. So in this network, we need to understand what are the vulnerable points from where an attacker can attack, and we should try to understand that what are those points that must be secure over the network. So let's try to understand is the common vulnerability that exists in both wired and wireless network is an unauthorized access to a network. आप देख रहे हैं कि मैंने unauthorized access को यहाँ underline किया है. उसकी reason यही है कि unauthorized access होगी तो आपका जो पूरा network है उसकी तमाम services जो हैं वो violate होंगी. उसमें आपका data भी आता है, आपके connections आते हैं, आपके servers आते हैं, वो तमाम जितनी भी devices हैं वो सब प्रॉब्लम में होगी. अगर हम फिजिकल नेटवर्क की बात करें, an attacker can connect his device to a network through unsecure hub or switch or port. लेकिन हम इसको सिक्योर कर सकते हैं क्योंकि एक फिजिकल एनवायरनमेंट के अंदर, एक सपोज बिल्डिंग के अंदर एक नेटवर्क क्रिएट हुआ हुआ है, तो हम वहां पर देख सकते हैं कि कौन से स्विचेस, कौन से ऐसे हब हैं जिनको हमें सिक्योर करने की जरूरत है, और हम उसे फिजिकली और वर्चुअली दोनों तरीके से सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं. In the other way, in the other world, the wireless networks are considered less secure than wired network because wireless network can be easily accessed without any physical connection. So ये बहस तो नेटवर्क जब से बना है तब से ही शुरू है, तभी से ये डिस्कस हो रही है कि जो वायरलेस नेटवर्क्स हैं, क्योंकि वो एक बाउंडेड नेटवर्क नहीं है, किसी भी जगह से किसी भी पॉइंट से आप विदाउट एनी फिजिकल कनेक्शन कनेक्ट हो सकते हैं. सो इसका मतलब यह है कि बहुत सारी जगह हो सकती हैं, बहुत सारी डिफरेंट लोकेशंस हो सकती हैं जहां पर अटैकर जो है वो अटैक कर सकता है. सो इसीलिए हमें अपने डेटा को इतना सिक्योर बनाना है, अपने चैनल्स को इतना सिक्योर बनाना है ताकि कोई अटैकर ना ही अनऑथराइज एक्सेस कर सके और ना ही हमारे डेटा को अंडरस्टैंड कर सके. So after accessing, an attacker can exploit this vulnerability to launch attacks such as, ये कुछ attacks के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं. आप नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में मेरा एक लेक्चर है जिसमें हम सिक्योरिटी थ्रेट्स पूरा डिस्कस करेंगे. हम देखेंगे कि वो कौन कौन से ऑल काइंड ऑफ पॉसिबल थ्रेट्स हैं जो हमारे नेटवर्क के ऊपर होते हैं, लेकिन कुछ 3 यहाँ पर लिखे हुए हैं, जिनमें से पहला है स्निफिंग. स्निफिंग बिल्कुल उसी तरीके का एक जिस तरह से हमने ये देखा था, जैसे कि हमने देखा था हमारा जो अटैक था, एक्टिव अटैक,
आप सबको याद होगा कि एक्टिव अटैक और पैसिव अटैक मैंने शुरू में बताए थे X.800, तो आप समझे कि स्निफिंग इज जस्ट लाइक द पैसिव अटैक्स, स्निफिंग द पैकेट टू स्टील वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। सो आप यहाँ पर देख लें कि इसकी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी यहाँ पर आपको नजर आ रही है कि हमारे दो होस्ट ने आपस में डेटा शेयर करना है राउटर ए और राउटर बी की मदद से, और यहाँ पे स्निफर बैठा हुआ है जो कि जो भी कम्युनिकेशन हो रही है उसको समझने की, उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर एक अटैक का नाम लिखा हुआ है जिसका नाम है वायर शार्क, तो वो स्निफिंग के लिए ही वायर शार्क अटैक जो है वो इस्तेमाल हुआ। इसके अलावा एक और अटैक है जिसका नाम है डॉस अटैक, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, और ये भी मैंने आपको जब फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा था तब हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज द डॉस अटैक that will be used to legitimate user on the network by flooding the network medium with spurious packets. That means सर्वर को ब्लॉक कर दिया जाता है एक जितने भी मैक्सिमम पोर्ट्स हैं उनको इस्तेमाल करके। इसके बाद हमारे पास अगला अटैक है स्पूफिंग का, स्पूफिंग फिजिकल आइडेंटिटीज मैक टू लेजिटिमेट होस्ट that then steal data or further launch a man in a middle attack. स्पूफिंग में क्या होता है कि हमारे पास एक ऐसी जो हमारे पास एक नेटवर्क बना हुआ है जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो हमारे पास जो एक्चुअल हमारा सर्वर है उसकी बजाय उसको किसी और जगह पे किसी और राउट के ऊपर डाल दिया जाएगा। सो स्टूडेंट्स आपको कुछ टैग्स तो यहाँ पर नजर आ रहे हैं और हमें ये पता चल रहा है कि नेटवर्क में सिक्योरिटी की जरूरत क्या है, लेकिन कुछ टैग्स मैं आपको आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगी। सो अब हम देखते हैं कि कुछ प्रोटोकॉल्स जो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं CCN में यानी कंप्यूटर कम्युनिकेशन नेटवर्क कोर्स के अंदर और IAP के अंदर, उनकी रिवीजन कर लेते हैं और साथ ही साथ देखते हैं कि हमें कहाँ पर जरूरत है नेटवर्क को सिक्योर करने की। सो नेटवर्क प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न कम्युनिकेशन between devices connected on a network. They include mechanism for making connections as well as formatting rules for data packaging for messages send and receive. So पहला काम नेटवर्क का ये होता है नेटवर्क प्रोटोकॉल का कि एक जगह से दूसरी जगह कैसे कनेक्शंस क्रिएट होने हैं और वो कैसे सिक्योर होने हैं, और सेकेंडली उस पर डेटा कैसे सेंड और रिसीव होना है। Several computer protocols have been developed, each designed for a specific purpose. The popular and widely used protocols are TCP/IP with associated higher and lower level protocols. So TCP/IP प्रोटोकॉल जिसके बारे में आपने बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ी होंगी जी, कितने लेयर्स होती हैं इसमें और कैसे एक लेयर, हर लेयर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसको हम ये स्लाइड आप लोगों के लिए पढ़ देती हूँ, एक रिवीजन हो जाएगी, साथ ही साथ हम कुछ इसके बारे में मजीद चीज़ें देखेंगे। So transmission control protocol and internet protocol are two distinct computer network protocol mostly used together. Due to their popularity and wide adoption, they are built in an operating system for network devices. So हमें ये पता है कि TCP/IP हम अपने नेटवर्क जो हमारे कंप्यूटर है ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें किस तरीके से इनेबल कर सकते हैं। सो आईपी प्रोटोकॉल का जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है वो कहाँ तक काम कर रहा है जी, कॉरेस्पॉन्डिंग टू द नेटवर्क लेयर, लेयर 3, whereas TCP corresponding to the transport layer, that is layer 4 in OSI. TCP/IP applies to network communication where the TCP transport is used to deliver data across IP networks. So अगर मैं इसको कंक्लूड करूँ तो नोड टू नोड डिलीवरी, एंड टू एंड डिलीवरी एंड नेटवर्क टू नेटवर्क डिलीवरी वो TCP/IP प्रोटोकॉल का जो है वो काम है। सो TCP प्रोटोकॉल जो IP प्रोटोकॉल सूट है उसमें सिर्फ एक ही प्रोटोकॉल नहीं है, हर लेयर के ऊपर डिफरेंट प्रोटोकॉल्स है, जैसे कि आपने सुना होगा HTTP है, FTP है, SSH है, at application layer and Ethernet at data link and physical layer. So आप लोगों के सामने मैंने एक छोटी सी जो है वो पिक्चर इलिस्ट्रेट की है जिसमें आप देख रहे हैं कि हर लेयर के ऊपर हमारे पास डिफरेंट तरह के नेटवर्क प्रोटोकॉल्स आ रहे होते हैं, जिसमें जो है वो आप देख रहे हैं कि एप्लीकेशन लेयर अगर हम देखते हैं तो एप्लीकेशन लेयर के ऊपर टेलनेट, SMTP है, POP3 है, FTP, ये डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं इनके बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे CCN के कोर्स के अंदर।
इसी तरह ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर भी हमारे पास यूडीपी एंड टीसीपी है। देन इंटरनेट के ऊपर हमारे पास आईपी, आईसीएमपी, एआरपीडी, एचसीपी है। देन वी हैव फिजिकल एंड डेटा लिंक लेयर, वे हैव इथरनेट, पीपीपी एंड एडीएसएल। ये डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं। सो अब हमने ये देखना है कि हर लेयर के ऊपर, यानी एप्लीकेशन लेयर की बात करें तो हमें क्या किस तरह की सिक्योरिटी चाहिए, ट्रांसपोर्ट लेयर की बात करें तो कैसी सिक्योरिटी चाहिए, नेटवर्क या इंटरनेट लेयर की बात करें तो किस तरह की चाहिए, और नेटवर्क एक्सेस की बात करें तो किस तरीके की हमें जो है वो सिक्योरिटी चाहिए होगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द एप्लीकेशन लेयर ऑफ दिस प्रोटोकॉल। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये चीज जहन में रखनी है कि हर लेयर की एक डिफरेंट नीड है और हर लेयर के ऊपर हमें डिफरेंट तरह से सिक्योरिटी जो है वो ऐड करनी होगी। सो अब हम अंडरस्टैंड करते हैं कि वो कौन सी वल्नरेबिलिटीज हैं, वो कौन से बग्स हैं जो टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल के अंदर होंगे और जिनको बेहतर और सिक्योर करने के लिए हमें जो है वो सिक्योरिटी ऐड करनी पड़ेगी। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद द HTTP प्रोटोकॉल, दैट इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, दैट इज एन एप्लीकेशन layer protocol on TCP/IP used to transfer files that make up with the web pages and from the web server। हमें पता है कि HTTP क्या करता है कि जो हम लोग जब भी कोई वेबसाइट एक्सेस करते हैं सर्वर से अपने ब्राउजर के अंदर, तो ये प्रोटोकॉल हमारी हेल्प करता है उस जो वेब पेज है उसको हमारे कंप्यूटर पे लोड करने के लिए। So these transfer are done in plain text and an intruder can easily read the data packet exchange between the server and a client। इसकी अब इसीलिए आपने देखा होगा कि पहले HTTP सिंपल इस्तेमाल होता था, अब आपने देखा होगा कि HTTPS यूज होता है, यानी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। इस जिसके बारे में हम आने वाले लेक्चर में भी देखेंगे कि HTTPS जो है वो किस तरीके से सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। अगर हम सिंपल HTTP की बात करें तो ये जो HTTP है वो जो है वो क्योंकि हमारा ट्रैवल हो रहा है डेटा नेटवर्क के किसी भी मीडियम को इस्तेमाल करते हुए, तो कहीं पर भी इंट्रूडर जो है वो इन पैकेट्स को रीड कर सकता है और अगेन उसमें कुछ चीजें ऐड भी कर सकता है, कुछ डिलीट कर सकता है। यानी डेटा इंटेग्रिटी की वायलेशन भी हो सकती है। Another HTTP vulnerability is a weak authentication। अब कोई भी कहीं पर भी सर्वर कोई भी क्लाइंट आपके वेब पेज को एक्सेस करना चाहेगा तो आप वो सर्वर जो है उसको रिस्पॉन्स करेगा और वेब पेज खुल के उसके ब्राउजर में आ जाएगा। हमें इस वीक ऑथेंटिकेशन को एक तो सिक्योर करना है, आपने देखा है मैंने इसको इसीलिए अंडरलाइन कर दिया। Between the client and the web server during the initialization of the session, this vulnerability can lead the session hijacking attack, where the attacker steal the HTTP session of a legitimate user। Moreover, अगर आप और करें तो HTTP जो है अगर वो सिक्योर नहीं है तो हमारा जो सर्वर है उसके ऊपर भी जाके हिट हो सकता है। ये सिर्फ जो एक क्लाइंट रिक्वेस्ट कर रहा है सिर्फ उसी के लिए प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि सर्वर के लिए भी प्रॉब्लम हो सकती है। हमें जरूरत है कि हम HTTP को सिक्योर करें ताकि हमारे जो पेजेस खुल रहे हैं हमारे कंप्यूटर के अंदर लोड हो रहे हैं वो ऑथेंटिक एक प्रॉपर कनेक्शन के जरिए से जो है वो शेयर हो। TCP protocol vulnerability is a three-way handshake for connection establishment। आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि TCP जो प्रोटोकॉल है वो थ्री-वे हैंडशेक है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? An attacker can launch a denial of service attack as sync flooding to exploit this vulnerability। So let's discuss that what is the sync flooding। For example, this is one attacker, वो क्या करेगा? वो बहुत सारी रिक्वेस्ट जो है वो सर्वर पर देगा ताकि उसको जो है वो क्लाइंट जो भी रिक्वेस्ट है वो फुलफिल की जा सके। सर्वर क्या करेगा? वो इन तमाम के लिए पोर्ट ओपन करके एक्नॉलेजमेंट की जो है वो पिंग करेगा कि मैं एक्नॉलेजमेंट उसको देगा। अब ये लूप फ्लडिंग से आपको पता चल रहा होगा कि एक ही वक्त में बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है। अब ये सर्वर के ऊपर जा रही है और सर्वर अटैकर को ये रिक्वेस्ट जो है वो एज एन एक्नॉलेजमेंट दे रहा है। अब जब विजिटर आ रहा है उसने देखा कि उसे जब ये चाहिए पोर्ट चाहिए तो कनेक्शन
हॉल्ट हुआ हुआ है, एग्जॉस्ट हुआ हुआ है, और वहां पर कोई जगह ही फारिग नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि जो सिम फ्लडिंग है वो एक तरह की डॉस अटैक है, जिसमें बहुत जितनी भी पॉसिबल नंबर ऑफ पोर्ट्स हैं वो सारी फॉर द एक्नॉलेजमेंट इस्तेमाल हो रही हैं। He establishes lot of half-open sessions, but not completing the handshake. So ये एक difference है DOS और इसमें, कि वो सिर्फ रिक्वेस्ट ही कर रहा है सर्वर के ऊपर, और वो अपने जो हैंड शेकिंग प्रोटोकॉल है उसको कंप्लीट नहीं कर रहा। और इससे होगा क्या, दिस लीड टू सर्वर ओवरलोडिंग एंड इवेंचुअली अ क्रैश। तो डेफिनेटली जब रिक्वेस्ट ओपन होती जाएंगी तो जो एक्चुअल यूजर है उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। सो आईपी लेयर इज suspectively to many vulnerability through the IP protocol header modification. An attacker can launch an IP spoofing attack. So जब इंटरनेट प्रोटोकॉल लेयर की बात करें, क्योंकि ये नेटवर्क लेयर की बात है, नेटवर्क लेयर के ऊपर जो है वो जब डेटा हम कहते हैं कि हमारे सिस्टम से चला गया है क्लाउड पे, या जो हमारा मेन चैनल है उसके ऊपर, गेटवे के ऊपर चला गया है, तो फिर कोई भी कहीं पर भी उसमें अपडेट कर सकता है। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रोटोकॉल जो हमारे पास है वो है डीएनएस प्रोटोकॉल। आज का जो लेक्चर है वो इन्हीं चीजों के बारे में, कि वो कौन कौन से मेजर प्रोटोकॉल्स हैं जिन और उनमें क्या क्या वल्नरेबिलिटी या प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम दूर करेंगे। सो डोमेन नेम सर्वर प्रोटोकॉल एक ऐसा प्रोटोकॉल होता है जिसमें आपको पता है कि हमारे पास जो आईपी एड्रेस है वो वेब जो यूआरएल है उसके अगेंस्ट आईपी एड्रेसेस दिए जाते हैं। सो ये सर्वर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि वो जो भी आईपी एड्रेसेस है उनको रजिस्टर करें। सो डोमेन नेम सर्वर और सिस्टम is used to resolve host domain names to IP address. Network users depend on DNS functionality mainly during browsing the internet by typing the URL in the web browser. और अब होगा क्या, in an attack on DNS, an attacker aims to modify the legitimate DNS record so that it gets resolved to an incorrect IP address. अब जैसे मैंने लिखा www.google.com, तो गूगल के अगेंस्ट जो मेरे पास आईपी एड्रेस है वो डीएनएस की जिम्मेदारी है कि मुझे उस आईपी एड्रेस के ऊपर लेके जाए, यानी उस सर्वर के ऊपर लेके जाए जहां पर गूगल का सर्च इंजन पड़ा हुआ है, लिंक है, लेकिन वो मुझे किसी और जगह पर जो है वो रीराउट कर देगा इनकरेक्ट आईपी देके। सो इस तरह से अभी तो ये काफी कम होता है, लेकिन शुरू में ये होता था कि हम कोई यूआरएल लिख रहे होते थे तो उसके अगेंस्ट वो कोई और यूआरएल हमारे ब्राउजर के अंदर ओपन कर देता था। सो हमने अक्सर जो है वो जब भी कोई रिक्वेस्ट किया तो हम मोस्टली जो ब्राउजर का ले ऊपर वो सर्च बार होती है उसको अक्सर हम कम ही देख रहे होते हैं कि उस पर क्या लिखा हुआ है। सो बाजू का नेम भी डिफरेंट होते हैं, इवन हम जब हिट कर रहे हो सर्वर पे तो वो कुछ और ही चीज हमारे सिस्टम के अंदर लोड कर देता है। सो ये एक प्रॉब्लम है। सो इट कैन डायरेक्ट ऑल द ट्रैफिक फॉर द आईपी टू द रॉन्ग कंप्यूटर. An attacker can either exploit DNS protocol vulnerability or compromise the DNS server for materializing an attack. DNS के ऊपर एक और चीज होती है वो है कैशे पॉइजनिंग। पहले तो आप लोगों ने ये देख लिया कि डीएनएस के ऊपर पहली प्रॉब्लम तो ये है कि वो हमें रीराउट कर देता है किसी इनकरेक्ट आईपी एड्रेस या किसी इनकरेक्ट सर्वर के ऊपर। तो दूसरा प्रॉब्लम जो है वो कैशे पॉइजनिंग है। एन अटैक exploit a vulnerability found in the DNS protocol. An attacker may poison the cache by forging a response to a recursive DNS query sent by a resolver to an authoritative server. So cache के अंदर आपको पता है कि ये एक शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, इसके अंदर वो रिकर्सिवली इतनी रिक्वेस्ट डाल देता है, इतनी ज्यादा जो एक्नॉलेजमेंट या हमारी जो डोमेन नेम की रिक्वेस्ट है वो बहुत ज्यादा डाल देता है कि वहीं पर लूप चलता रहता है। और इससे क्या होगा, इससे डेफिनेटली जब कैशे फ्री नहीं है, जब भी कोई नया हिट आ रहा है एक ऑथेंटिक यूजर का, तो जो हमारी कैशे है वो हमें प्रॉपर डीएनएस के पास नहीं लेके जा रही और हम उस डीएनएस की सर्विसेज इस्तेमाल करने नहीं दे रही। Once the cache DNS resolver is poisoned, the host
will get directed to a malicious website and may compromise credential information by communicating to this site. So दोनों ही जो problems हैं DNS की वो relevant हैं इस चीज से कि actual जो IP address है उसकी बजाय किसी और IP address के पर पहुंचा दिया जाए by using the cache poisoning method or by using the direct approach to uh, approach to reroute us at the incorrect IP address. So this is one example. Suppose ये Mr. A हैं जिन्होंने इस सर्वर के ऊपर हिट किया, ये अटैकर है, अटैकर ने इस कैशे के ऊपर डेटा जो है वो सर्वर को इसकी वल्नरेबिलिटी को पॉइजन कर दिया। अब क्या होगा कि जब भी वो इस सर्वर के ऊपर हिट करना चाहेगा वो उसको किसी और ही सर्वर के ऊपर जो मलिशियस साइट है उस पर ले जाएगा। यानी जो एक्चुअल हमारे पास सर्वर है उस पे जाने की बजाय अगर मैंने ये आपने ये सर्वर देखा लिखा हुआ है JP सर्ट और .jp, इसने ये जो मिस्टर ए है इसने इस सर्वर के पे जाना था लेकिन अटैकर ने इसके कैशे को पॉइजन करके इसको रीराउट कर दिया है टुवर्ड द मलिशियस साइट. So this is one method that has been used for DNS servers. Another protocol is called the ICMP, that is Internet Control Management Protocol. This is a network management protocol of the TCPIP network. It is used to send error and control messages regarding the status of network devices. So ये आपके लिए quick revision दी कि इस protocol का काम क्या है, error और control messages को send करना. अब इसमें कहाँ problem आ सकती है? Let's check out. ICMP is the integral part of the IP network implementation and thus is present in very network setup. ICMP has its own vulnerability and can be abused to launch an attack on a network. So error messages और control messages जो हैं वो ही इसमें problem create करेंगे क्योंकि वो जब हम send या receive होंगे तो attacker उसी को misuse करेगा. So students, what are the major vulnerabilities of ICMP protocol? It allows an attacker to carry out network investigation to determine the network topology and path to the network. ICMP sweep involves discovering all host IP which are alive in the entire targeted network. So ICMP का पहला काम ये होगा कि वो ये देखे कि पूरे नेटवर्क के अंदर कितने ऐसे डिवाइसेस हैं जिनके ऊपर आईपी एड्रेस या मैक एड्रेस या आईपी एड्रेस स्पेसिफिकली वो ओपन है, वो कनेक्टेड है. Trace route is an ICMP utility that is used to map targeted network by describing the path in the real time from the client to the remote server. So इस जो यूटिलिटी है उसके जरिए से जितने भी नेटवर्क के ऊपर एक्टिव यूजर्स हैं, एक्टिव क्लाइंट्स हैं, क्लाइंट डिवाइसेस स्पेसिफिकली, उनका जो है वो पता चल जाएगा इसको. अब होगा क्या जब ये पता चल गया है तो एन अटैकर कैन लॉन्च अ डिनायल ऑफ सर्विस अटैक यूजिंग ICMP वल्नरेबिलिटी. वो देखेगा कि जितनी कैपेबिलिटी अवेलेबल कैपेबिलिटी है किसी नेटवर्क की उसके ऊपर वो डिनायल ऑफ सर्विस अटैक करेगा. This attack involves sending ping packets that exceeds 65,535 bytes to the targeted device. The target device failed to handle this packet properly and can cause the operating system to crash. So ICMP की जितनी भी कैपेबिलिटी होगी, जितने भी ओपन या यूजर है, एक्टिव यूजर है, वो क्या करेगा कि उसको एक रिकर्सिव पिंग पैकेट्स भेजता रहेगा. जैसे क्या होगा कि जो सर्वर है वो हेल्ड हो जाएगा, इवन के क्रैश हो जाएगा, और जो एक्चुअल यूजर्स हैं जो नेटवर्क पर न्यू कनेक्शन की रिक्वेस्ट भेजते हैं तो उनको कनेक्शन रिक्वेस्ट जो है वो फुलफिल नहीं हो सकेगी. सो इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे प्रोटोकॉल हैं. आपने देखा ARP है, DHCP, SMTP. इन तमाम प्रोटोकॉल्स की कोई ना कोई वल्नरेबिलिटी है that can be exploited by the attacker to compromise the network security. So what is the solution? We need security at every level of network protocol suite. So this is the solution, that we need to add security at every level of TCP/IP protocol. So in the coming lecture,
our main focus is to overcome these vulnerability, and we will try to understand that how and what kind of different approaches and standards and protocols are available at every layer of TCP/IP. सो अपने जहन में इन तमाम वल्नरेबिलिटीज को रखें। डीएनएस की बात आती है तो डीएनएस एंड पॉइजनिंग की रखें। एचटीटीपी की बात आती है तो आप उसकी उसकी वल्नरेबिलिटी को अपने जहन में रखें। इसके अलावा आईसीएमपी की बात, टीसीपी आईपी की बात, जितने भी प्रोटोकॉल आज आपसे डिस्कस किए गए हैं उन सब की जो जो थोड़ी बहुत वल्नरेबिलिटीज, प्रॉब्लम्स, इश्यूज आपके साथ डिस्कस किए गए हैं उनको अपने जहन में रखें, ताकि हम आने वाले लेक्चर के अंदर हम इन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने सीखें। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर दिस सेशन। अल्लाह हाफिज।